اسلامک اور ہسٹوریکل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سنا کفار مکہ کی بھاری فوج اور عبداللہ بن ابی کی سازش۔ اب سنتے ہیں آگے۔ بنی قینقاع کے یہودیوں کی ہار نے مسلمانوں کو مدینہ کے آس پاس کے علاقوں میں اور مسحور کر دیا تھا۔ عام یہودیوں کو بنی قینقاع کی ہار اور مسلمانوں کی جیت سے افسوس ہوا اور غصہ بھی آیا، پر وہ خاموش رہے اور انتظار کرنے لگے کہ مسلمان یہودیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں۔ یہودی صدیوں سے عربوں پر حاوی تھے، سب ان سے دبتے تھے۔ اس دبنے یا لحاظ کرنے سے یہودیوں کے دماغ میں یہ فطور بھر گیا تھا کہ عرب ان کی بہادری کا لوہا مانتے ہیں اور وہ ان سے ڈرتے ہیں۔ لیکن آج جب 300 مسلمانوں کی 700 یہودیوں پر جیت ہو گئی تو ان کے گھمنڈ کا نشہ اترا اور وہ سمجھ گئے کہ عربوں کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ بنی قینقاع کے قلعے پر مسلمانوں کے قبضے کے بعد جب اس قبیلے کے تمام یہودی گرفتار ہو گئے تو دوسرے قبیلے کے یہودیوں کو چنتا ہوئی اور انہوں نے فوراً اپنی مجلس شورا بلائی۔ سب جمع ہوئے، حالات پر جم کر باتیں ہوئیں۔ کافی بحث کے بعد طے پایا کہ عبداللہ بن ابی سے کہا جائے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیدیوں کی سفارش کر کے ان کی جاں بخشی کرائے۔ اس مقصد کے لیے ایک وفد عبداللہ کے پاس بھیجا گیا۔ عبداللہ ظاہر طور پر مسلمان ہو چکا تھا، پر اس کا دل کفر کی طرف مائل تھا۔ وہ چھپے طور پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تھا۔ اس نے قریش مکہ کے پاس قاصد بھیج کر انہیں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ابھارا تھا۔ یہودیوں کے وفد سے اس نے ملاقات کی اور ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے قیدیوں کی سفارش کرنے کا وعدہ کر لیا۔ ایک دن بہت صبح سویرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے، جہاں نثار صحابہ آپ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ قیدیوں نے جس قاصد کو فدیہ لینے کے لیے بھیجا تھا وہ واپس آیا تھا اور سب کا فدیہ ساتھ لایا تھا۔ ہر سال فدیہ لے کر قیدیوں کو رہا فرما رہے تھے۔ فدیہ کی رقم کو حضرت طلحہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گن رہے تھے۔ فدیہ کی رقم لے کر تمام قیدی چھوڑے جا چکے تھے، صرف ابو العاص باقی رہ گئے تھے۔ ابو العاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ حضرت زینب سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، بدر کی جگہ پر کفار کے ساتھ لڑنے آئے تھے، اس لیے اوروں کے ساتھ وہ بھی گرفتار کر لیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد سے پوچھا، کیا ابو العاص کا فدیہ نہیں لائے؟ لایا ہوں، قاصد نے جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب نے اپنے گلے کا ہار اتار کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہی قاصد نے ایک بڑا قیمتی ہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہار دیکھ کر کچھ دکھی سے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہار کو دیکھ کر آپ دکھی کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ یہ ہار حضرت ختیجہ مرحومہ کا ہے، زینب کے پاس ان کی یادگار تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو زینب کے پاس واپس کر دیں، ابو العاص کو بغیر فدیہ چھوڑ دیں۔ اگر تم اسے مناسب سمجھتے ہو تو زینب کو اس کی ماں کی یادگار چیز واپس کر دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عبداللہ بن ابی بیچ میں بول پڑا، اور لوگوں سے تو فدیہ لیا جائے اور ابو العاص کو بغیر فدیہ کے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ پر غصہ آ گیا۔ کڑک کر کہا، عبداللہ، کیا تم منافق ہو؟ کیا تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ سے خوشی ہوتی ہے؟ اس دن سے عبداللہ کا نام منافق ہو گیا۔
और उसे अब्दुल्ला मुनाफिक के नाम से याद किया जाने लगा। उमर, तुम्हें बहुत जल्द गुस्सा आता है। अब्दुल्ला ने कहा, सोचो तो सही, क्या ये इंसाफ है कि औरों से तो फिदिया लिया जाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद को बगैर फिदिया रिहा कर दिया जाए। असल में अब्दुल्ला मुनाफिक की चाल थी कि किसी तरह मुसलमानों में फूट डाल दे। वो अक्लमंद और चालाक आदमी था। खूब समझता था कि जब तक मुसलमानों में एका है, कोई ताकत उन पर काबू नहीं पा सकती। इसलिए उसने ऐसा अंदाज इख्तियार किया, लेकिन कोई भी मुसलमान उसका हमनवा न हुआ, बल्कि सब ने ही उसे बुरा कहना और डांटना शुरू किया। चुनांचे हजरत मुसाब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, जिनके सगे भाई अबू अजीज का फिदिया अदा हुआ था, कहा, हम सब मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी चाहते हैं। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबुल आस को बगैर फिदिया के रिहा करना चाहते हैं तो हमको ऐतराज करने का हक नहीं, बल्कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम फिदिया भी अबुल आस को देकर रुखसत कर दें तो हमको और भी ज्यादा खुशी होगी। अब्दुल्ला, तुम निफाक की बातें न करो, इससे नाफरमानी की बू आती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, अब्दुल्ला, तुम क्या समझते हो कि हम अरब मुसलमान होकर भी पिछली जिहालत पर कायम रहे? खुदा की कसम, हमने मुसलमान होते ही जिहालत छोड़ दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा रसूल मानते हैं, आपके इरशाद को हुक्म मानते हैं, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा पूरा हक हासिल है कि जिसके साथ जो रियायत चाहे करें। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु भी तंबीह की कि अब्दुल्लाह, तुम मुनाफिकों जैसी बातें करके तमाम मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाते हो। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिदाई हैं। हमारा काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म की इताअत करना है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कैदियों को कत्ल कर डालते और अबुल आस को छोड़ देते तो भी हमें कुछ कहने का हक न था। तुमको अपनी गलती मान लेनी चाहिए। हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मुसलमानों, मैं अब्दुल्लाह को खूब जानता हूँ। उसके दिल में कुफ्र का मर्ज अब तक मौजूद है। ये अब तक अपनी शाही के सपने देख रहा है। इसका मनसा मुसलमानों में निफाक डालकर अपना मतलब हासिल करना है। अगर ये मुसलमान न होता तो सबसे पहले मेरी तलवार उसकी गर्दन पर पड़ती। मुनाफिक समझता था कि उसकी बातों से मुसलमान भड़क कर उसकी हमनवाई करेंगे, लेकिन जब उसने देखा कि हर आदमी उसे बुरा कहने लगा तो उसने कहा, मुसलमानों, मुझे ख्याल न था कि तुमको मेरी बात नागवार गुजरेगी। मैंने मुसलमानों में फूट डालने के लिए ये बात न कही थी, बल्कि इससे मेरा मनसा यही था कि अगर रियायत की जाए तो सबके साथ की जाए। एक के साथ रियायत करना इंसाफ न होगा। पर जब तुम सब मुनासिब समझते हो तो मैं भी जायज करार दिए देता हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, अब्दुल्लाह, तुम वाकई मुनाफिक हो। अब भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो जिससे मुसलमानों में फूट पड़ जाए। अगर तुम आगे इन बातों का ख्याल न करोगे तो तुम्हारा सर उड़ा दिया जाएगा। अब्दुल्ला चुप हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस को हार देते हुए कहा, ये हार जैनब को देकर कह देना कि तमाम मुसलमानों ने उसकी माँ की यादगार उसे वापस कर दी है। चूंकि अबुल आस बद्र की लड़ाई के आखिरी कैदी थे, जब वे भी छोड़ दिए गए तो अब्दुल्लाह मुनाफिक ने कहा, आज यहूदियों के बारे में भी फैसला कर देना चाहिए। बेकार कैदियों का बोझ उठाने से क्या हासिल। बेशक यहूदियों के बारे में भी अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला करना मुनासिब समझे तो कर दें। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मशविरा दो कि यहूदियों के साथ क्या बर्ताव किया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा। यहूदियों ने समझाने और नसीहत करने के बावजूद समझौते की खिलाफ वर्जी की है और मुसलमानों को शहीद किया है, इसलिए वे किसी रियायत के हकदार नहीं हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, चूंकि यहूदियों ने बेवजह लड़ाई मोल ले ली है, बेवजह मुसलमानों पर धावा बोला है, इसलिए वे सब के सब कत्ल कर दिए जाएं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये राय थी। ये यहूदी मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन हैं।
उनका कत्ल कर डालना चाहिए। हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने राय दी, मुझे भी अफसोस है कि यहूदियों ने बहुत गलत काम किया, लेकिन कत्ल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत मेहरबान हैं। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों को फिदिया दिए बगैर छोड़ देंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम व करम की शोहरत हो जाएगी। अब्दुल्ला मुनाफिक ने कहा, मुसलमानों को सताने वाले, बेवजह लड़ने वाले अगर बगैर फिदिया दिए छोड़ दिए जाएंगे तो और लोगों की जुर्रत बढ़ जाएगी और वे पहले से भी ज्यादा निडर और बेबाक हो जाएंगे और मुसलमानों को सताने लग जाएंगे। इसलिए मेरी राय भी यही है कि उनको कत्ल कर डाला जाए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी राय दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर डालना तो आसान है, पर एक रसूल की शान के मुताबिक क्या ये है कि वो तमाम कैदियों को बेदर्दी से कत्ल कर डाले। अब्दुल्ला मुनाफिक ने कहा, अब्दुल्ला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम यहूदियों को बिला फिदिया आजाद करना चाहते हो? हाँ, मेरी मनसा यही है। अब्दुल्ला खुल गया। अच्छा, तमाम कैदी रिहा किए जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन उन्हें देश निकाले की सजा दी जाती है। फिर उबादा को खिताब करके फरमाया, उबादा, तुम तमाम कैदियों को अपनी हिरासत में लेकर दर्रा खैबर तक निकल जाओ, लेकिन कैदियों से ये इकरार करा लो कि वे जिंदगी भर मुसलमानों के खिलाफ तलवार न उठाएंगे। तमाम कैदी बुलाए गए। उन्होंने हलफ उठाया कि वे जिंदगी भर मुसलमानों के खिलाफ कोई साजिश न करेंगे और न किसी साजिश में शरीक होंगे और न हथियार उठाएंगे। इस हलफ लेने के बाद वे सब उबादा की सरकर्दी में देश निकाला दे दिए गए। चूंकि अब दोपहर हो चुकी थी, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर अपने हुजरे में तशरीफ ले गए, जो मस्जिद के करीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के लिए तामीर किया गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार जरूर करें। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुल सीरीज सुनने के लिए हमारे चैनल पेजेस ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।